नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। चित्ता सेकंड, asserts from uncommon wisdom. Chitta is the essence in a person, everything else is peripheral. Chitta is life, the essential component of what it means to be alive. Chitta is the one that knows it does not always know correctly. Chitta still knows, but it knows falsely. What ensues from what wrong view are unwholesome actions of body, speech, and mind. The body and mind are simply mechanisms. The chitta is the force that controls their behavior. The chitta exercise the powers of intent and volition. That intention in turn create karma. Because the body and the mind cannot act independently of the chitta, only the chitta can be held responsible for karma and its consequences. The real power of the chitta is neutral, but the kleshas are biased. They harness the strength of the chitta for unwholesome purposes. The kleshas want this and that. All the time they are grasping at something and they push the chitta about to make body and mind to attain those things. In the end, chitta reaps the consequences of the nature, which is why there is so much. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Accepts of uncommon wisdom. Chitta second. Chitta is the essence in a person. Everything else is peripheral. Chitta is life, the essential component of what it means to be alive. Chitta is the one that knows it does not always know correctly. Chitta still knows, but it knows falsely. What ensues from that wrong view are unwholesome actions of body, speech, and mind. The body and mind are simply mechanisms. The chitta is the force that controls their behavior. The chitta exercises the powers of intent and volitions. That intention in turn create karma. Because the body and the mind cannot act independently of the chitta, only the chitta can be held responsible for karma and its consequences. The real power of the chitta is neutral, but the kleshas are biased by harness the strength of the chitta for unwholesome purposes. The kleshas want this and that all the time. They are grasping at something and they push the chitta about to make body and mind to attain those things. In the end, the chitta reaps the consequences of the nature, which is why there is so much. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। असामान्य ज्ञान पुस्तक से कुछ अंश। चित्ता द्वितीय, किसी व्यक्ति में चित्त सार है, बाकी सब बाहरी है, परिधि है। चित्त जीवन है, जीवित रहने का आवश्यक अंग है। चित्त वह है जो जानता है, यह सदैव सही नहीं जानता। चित्त अब भी जानता है पर झूठा जानता है। उसे गलत दृष्टिकोण से शरीर, वाणी और मन के अहितकर कार्य उत्पन्न होते हैं। शरीर और मन बस तंत्र है। चित्त वो शक्ति है जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। चित्त इरादे और इच्छा की शक्तियों का प्रयोग करता है। वह इरादे बदले में कर्म का निर्माण करता है। क्योंकि शरीर और मन चित्त से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, केवल चित्त से ही कर्म और उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। चित्त की वास्तविक शक्ति तटस्थ है, लेकिन क्लेश पक्षपाती है। वह चित्त की शक्ति का उपयोग अहितकर उद्देश्यों के लिए करते हैं। क्लेश वो चाहते हैं, हर समय किसी न किसी चीज को पकड़े रहते हैं और वे शरीर और मन को उन चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए चित्त का आगे बढ़ाते हैं। अंत में चित्त प्रकृति के परिणामों को भोगता है। यही कारण है कि इसमें इतना कुछ है। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा थोड़ा सा विस्तार रूप में सुनते हैं और समझते हैं। असामान्य ज्ञान पुस्तक से पत्ती से इससे कुछ अंश लेकर हमें बता रहे हैं
चित्त के बारे जो हम पहले भी हम इसको अध्याय को सुन चुके हैं, लेकिन द्वितीय अध्याय में फिर दोबारा हमें बता रहे हैं। आइए दोस्तों इसको बड़े ध्यान से हम सुनते हैं और समझते हैं। चित्त के बारे हम अच्छी तरह जानते हैं। यह किसी व्यक्ति का चित्त का सार है, बाकी सब बाहरी है, परिधेय है। चित्त जीवन है, जीवित रहने का ये आवश्यक अंग है। चित्त के बारे में जानते हैं कि हमारे अंदर जो चित्त के बारे में बता रहे हैं, चित्त वो है जो जानता है लेकिन वो सदैव सही नहीं जानता। जो चित्त है वो सदैव सही नहीं जानता। चित्त अभी वो जानता है पर झूठा जानता है, पूर्ण सत्य नहीं जानता। यहाँ इसका कहने का मतलब है उस गलत दृष्टिकोण से शरीर, वाणी और मन के अहितकर कार्य उत्पन्न होते हैं। इसी गलत दृष्टिकोण से वाणी, शरीर और मन के अहितकर कार्य उत्पन्न होते हैं। उन्हें झूठे जानने के कारण चित्त वो शक्ति है जो व्यवहार को नियंत्रित करती है। चित्त इरादे और इच्छा की शक्तियों का प्रयोग करता है। चित्त जो है इरादे और शक्तियों को, इच्छा और इरादे की शक्तियों का प्रयोग करता है। वह इरादे बदले में कर्म का निर्माण करता है। जो इरादे बना के कार्य करते हैं वो कर्म का निर्माण करते हैं, क्योंकि शरीर और मन चित्त से संदर्भ रूप से कार्य नहीं कर सकता। शरीर और मन चित्त से संदर्भ रूप से कार्य नहीं कर सकता, इसके बारे में बता रहे हैं। केवल चित्त को ही कर्म और उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं तो चित्त के आधार पर ही कार्य होता है और उसके द्वारा ही कर्म का निर्माण होता है, इसीलिए उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। चित्त की वास्तविक शक्ति स्थिर है, तटस्थ है, लेकिन क्लेश पक्षपाती है। यहाँ पर जो चित्त के बारे में बता रहे हैं कि चित्त जो शक्ति है वो तटस्थ है, स्थिर है, लेकिन जो क्लेश है जो पक्षपाती है। चित्त की शक्ति का उपयोग अधिकतर अहितकर उद्देश्यों के लिए करते हैं। जो पक्षपाती है वो चित्त की शक्ति का उपयोग अहितकर कार्य के उद्देश्य के लिए करते हैं। क्लेश वो और चाहते हैं कि हर समय किसी न किसी चीज को पकड़ कर बैठे रहते हैं और वे शरीर और मन उन चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं जो चित्त को आगे बढ़ाते हैं। जो भी कार्य को प्राप्त करना होता है वो चित्त को आगे बढ़ाते हैं। अंत में चित्त प्रकृति के परिणामों को भोगता है। यही कारण है कि इसमें इतना कुछ है। चित्त के अंदर बहुत कुछ है, उस परिणामों को जो भोगता है इसी को, इसमें बहुत कुछ है, इसमें बता रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी मिलती है। असामान्य ज्ञान पुस्तक जो है बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, इसे सबको पढ़ना चाहिए। पत्री सर के द्वारा बताए गए ये पुस्तक बहुत ही अद्भुत है और बहुत सी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी मिलती है। तो आपसे भी यही निवेदन है सबसे कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।